Good morning, students. Today I am going to teach you a new lesson, 3 questions from your textbook, Honeycomb Class 7. Before starting this lesson, I would like to read these 2 lines. A king has 3 questions. एक राजा था जिसके मन में 3 प्रश्न थे and he is seeking answers to them. और वह राजा अब उन प्रश्नों के उत्तर को खोज रहा है. What are the questions? वे कौन से 3 प्रश्न हैं? Does the king get what he wants? क्या राजा को वे प्रश्न उनका उत्तर मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? इसको जानने के लिए हम इस लेसन्स को पढ़ते हैं. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. The thought came to a certain king. एक राजा के मन में विचार आया that कि he would never fail, वह कभी भी असफल नहीं होगा if he knew 3 things, यदि उसे 3 चीज़ों के बारे में, यदि उसे 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो वह अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा. These 3 things were, ये 3 चीज़ें थी. What is the right time to begin something, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम करने के लिए कौन सा समय सही होगा. Which people should he listen to, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए. What is the most important thing for him to do, और उसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है जो वो सबसे पहले करे. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने इस तरह से क्या किया, जो मैसेंजर्स थे, मैसेंजर्स में होता है देवदूत, तो यहाँ पे नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको संदेशवाहक, जो संदेश देने का काम करते हैं. तो राजा ने इसलिए क्या किया, संदेशवाहकों को थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य में भेजा. प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, और यह वायदा किया कि वह एक लार्ज सम, एक बहुत बड़ी राशि, ऑफ मनी, धन की एक बड़ी राशि देगा, टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो भी उसकी प्रश्नों का सही उत्तर देगा, उसे वह एक धन राशि देगा. ऐसा वायदा उसने अपनी जनता, अपने राज्य के लोगों से किया था. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. कई विद्वान, wise men, विद्वान, came to the king, राजा के पास आए, but they all answered his questions differently. Differently means भिन्न भिन्न, लेकिन सभी ने उसके प्रश्नों का उत्तर अलग अलग तरीके से दिया. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. In reply to the first questions, पहले प्रश्न के जवाब में, some said, किसी ने कहा, the king must prepare a timetable, कि राजा को क्या करना चाहिए, एक सही समय सारणी को तैयार करना चाहिए, and then follow it strictly, और उसको नियमानुसार कठोरता से उसका पालन करना चाहिए. Only in this way, केवल इसी तरह से या केवल इसी तरीके से, they said, उन्होंने कहा, could he do everything at its proper time, वह किसी भी काम को, अर्थात प्रत्येक काम को सही समय पर कर पाएगा. Others said that it was impossible, और कुछ अन्य जो थे उन्होंने कहा कि यह असंभव है. क्या असंभव है भाई? To decide in advance the right time for doing something, कि पहले ही किसी काम को करने के लिए सही समय क्या होगा, यह इसका निर्णय कर पाना असंभव के लगभग है. अर्थात यह असंभव होगा कि किसी भी काम करने का सही समय क्या होगा, इसको एडवांस में बताना असंभव है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा ने ये सारी चीज़ें, राजा को ये सारी चीज़ें देखनी होंगी. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, क्या क्या किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसे मूर्खतापूर्ण जो लोग हैं, जो प्लेजर्स हैं, यहाँ पे लोग नहीं, सॉरी, प्लेजर्स जो हैं, सुख सुविधाएँ, जो जिसको कह सकते हैं भोग विलास की वस्तुओं से बचना होगा. एंड और always do whatever seemed necessary at that time, और हमेशा do करना होगा whatever seemed necessary at that time, उस समय पर जो भी सही और आवश्यक होगा, प्रतीत होगा, उसे हमेशा करना होगा. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. सही समय, proper time means सही समय. फिर भी अन्य लोगों ने कहा कि राजा को एक ऐसी काउंसिल कह सकते हैं हम, परिषद को, एक समिति
एक समिति की आवश्यकता होगी, एक परामर्शदात्री समिति की आवश्यकता होगी जो कि वाइज मैन से बनी हुई होगी, जिसमें कि विद्वान लोग होंगे जो राजा को किसी भी काम को करने का सही समय बताएंगे कि उसे कब सही समय है किसी काम को करने के लिए। This was because one man who would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. This was because one man would find it impossible. क्योंकि इस समिति को बनाने की बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि एक व्यक्ति को राजा को यह बताने में बहुत कठिनाई महसूस होगी या उसे असंभव होगा, यह निर्णय लेने में सही ढंग से वह निर्णय नहीं ले पाएगा विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी की मदद के एक व्यक्ति कभी भी राजा को यह नहीं बता पाएगा कि कौन सा काम आपको कब करना है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, वो ये नहीं बता पाएगा कि प्रत्येक एक्शन को करने के लिए कौन सा समय सही होगा अगर वह अकेला है। दैट्स वाई दे हैव एडवाइज्ड हिम टू फॉर्म अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। बट देन others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. And only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. अब यहाँ पे देखिए, but then others, लेकिन तभी कुछ और भी थे वहाँ पे जिन्होंने कहा that there were some things which could be urgent, कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ काम ऐसे होंगे जो अर्जेंट होंगे, जिनको अति आवश्यक रूप में करना ही करना होगा। These things could not wait for the decision of the council. और ये जो काम होंगे वे काउंसिल के जो निर्णय होंगे उनकी प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे। अर्थात कुछ काम राजा के पास ऐसे आ सकते हैं, संकट काल में कुछ ऐसे काम आ सकते हैं जिसके लिए काउंसिल के निर्णय की प्रतीक्षा राजा को नहीं करनी होगी। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. किसी भी काम को करने का सही समय डिसाइड करने के लिए फ्यूचर में देखना आवश्यक होगा। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति तलाशना होगा जो भविष्य में क्या होगा उसके बारे में पहले राजा को बता दे। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये काम सिर्फ और सिर्फ मैजिशियंस कर सकते हैं। मैजिशियंस मीन्स जादूगर कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए उन्होंने राजा को सलाह दी कि राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए या उनकी तलाश करनी चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. In their answers to the second question, और दूसरा प्रश्न क्या था कि उसे किन किन लोगों की बातों को मानना चाहिए या उसे किन किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो दूसरे प्रश्न के जवाब में some said, किसी ने कहा that कि the people most necessary to the king were his counselors, कि राजा को सबसे ज़्यादा आवश्यकता काउंसलर्स की पड़ेगी। काउंसलर्स, जिस काउंसिल की हमने अभी बात की, कि कुछ लोगों ने कहा कि राजा को किसी भी निर्णय, किसी भी काम को करने के लिए सही समय क्या होगा, इसके निर्णय के लिए राजा को एक काउंसिल का गठन करना पड़ेगा। तो जो काउंसिल में जो लोग होते हैं उनको कहते हैं काउंसलर्स। तो कुछ लोगों ने कहा दूसरे प्रश्न के जवाब में कि राजा को सबसे ज़्यादा आवश्यकता काउंसलर्स की पड़ेगी, उस परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की पड़ेगी। अदर सेट, लेकिन कुछ और लोगों ने कहा द प्रीस्ट, पुजारियों की पड़ेगी। प्रीस्ट मीन्स पुजारी। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा चोज मीन्स चुना, द डॉक्टर्स को चुना। एंड येट अदर्स सेट दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और फिर कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि राजा को सबसे ज़्यादा आवश्यक जो लोग होंगे वो होंगे उसके सैनिक। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेट साइंस, तीसरे प्रश्न के जवाब में किसी ने कहा कि राजा को साइंस यानी विज्ञान की जरूरत पड़ेगी। अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को लड़ाई कैसे लड़ी जाती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा। तीसरा प्रश्न क्या था कि राजा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा सबसे पहले करना होगा। तो किसी ने कहा भाई राजा को विज्ञान की बात माननी पड़ेगी, किसी ने कहा कि राजा को लड़ाई, सबसे पहले लड़ाई की बात अपने मन में या मस्तिष्क में रखनी होगी। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और किसी ने कहा कि राजा को सबसे पहले काम करना पड़ेगा धार्मिक उपासना। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. As the answers to his questions were so different, जैसे कि जो उत्तर आ रहे थे लोगों के द्वारा, जो उत्तर राजा को बताए गए, उन प्रश्नों के उत्तर बताए गए, वे
भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे, कोई भी एक प्रश्न एक उत्तर पर नहीं टिक पा रहा था, किसी के पास कोई डेफिनेट या कोई सर्टन आंसर नहीं था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं था, एंड ही नो, और उसने किसी को भी इनाम नहीं था, रिवार्ड किसी को नहीं दिया गया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन, इसकी बजाय उसने निर्णय किया कि वह खोजेगा या लेगा, यहाँ पे टू सीक द एडवाइस, एडवाइस में सलाह, ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, एक साधु की सलाह वह लेगा, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध होगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. जो साधु था वह एक जंगल में रहता था, which he never left, जिसे उसने कभी भी नहीं छोड़ा था। He saw no one but simple people, उसने किसी को नहीं देखा था सिवाय साधारण लोगों के। And so the king put on ordinary clothes, इसलिए राजा ने क्या किया, साधारण वस्त्र पहने। Before he reached the hermit's hut, वह साधु की झोपड़ी तक पहुंचता उससे पहले the king left his horse with his bodyguard and went on alone, उसने क्या किया, राजा ने अपने घोड़े को छोड़ा with his bodyguard, अपने रक्षक के साथ, and went on alone, और उस जंगल में अकेला ही चला गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. As the king came near the hermit's hut, जैसे ही राजा साधु की कुटिया के नज़दीक आया, he saw the hermit digging the ground in front of his, उसने देखा कि जो हर्मिट था, जो साधु था, वह डिगिंग कर रहा था, वो खोद रहा था ग्राउंड, जमीन को, in front of his, अपने सामने हट, अपने सामने, अपनी कुटिया के सामने की जमीन को वह खोद रहा था। He greeted the king, उसने राजा का स्वागत किया, and continued digging, और वह खोदते रहा, अर्थात उसने खोदना बंद नहीं किया। The hermit was old and weak, जो साधु था वह बूढ़ा था और वह कमजोर था, and as he worked he breathed heavily, जैसे ही वो काम करता था उसको बहुत तेजी से वह क्या करता था, सांस लेता था, अर्थात वो हाँफते हाँफते काम कर रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? The king went up to the hermit. राजा साधु के पास गया, and said, उसने कहा, I have come to you, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, विद्वान साधु जी, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मेरे मन में जो 3 प्रश्न हैं, मैं उनके उत्तर की प्राप्ति के लिए या उत्तर चाहने ही तो आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीखूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से वे लोग हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे या जिनकी सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत होगी। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन से वे काम होंगे जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होंगे या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। The hermit listened to the king, but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and walk in your place. The hermit listened to the king. साधु ने राजा को सुना, but did not speak, लेकिन कुछ नहीं कहा। He went on digging. वह खोदता रहा। You are tired, तुम थक गए हो, said the king. राजा ने कहा कि तुम थक गए हो। किसको कहा? साधु को कहा। Let me take the spade, मुझे फावड़ा दीजिए, and work in your place, ताकि मैं आपके स्थान पर काम कर सकूं। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड। साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, धन्यवाद देते हुए कहा, गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को उसने फावड़ा दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वह जमीन पर बैठ गया। आप ये देख रहे हो चित्र में। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest and let me walk. When the king had dug 2 beds, beds कहते हैं छोटे छोटे खड्डों को। जब राजा ने 2 छोटे छोटे खड्डे खोद कर बनाए, he stopped, वह रुका, and repeated, और उसने दोहराया his questions, अपने प्रश्नों को। राजा ने अपने प्रश्नों को दोहराया और the hermit gave no answer, लेकिन जो साधु था उसने उत्तर नहीं दिया, but stood up, लेकिन खड़ा हुआ, stretching out his hand for the spade, उस फावड़े को प्राप्त करने के लिए उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया। नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने उसे फावड़ी, जो उसके हाथ में फावड़ा था, उसे नहीं दिया और कंटिन्यू टू डिग, और
खुदाई का काम जारी रखा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. 1 hour passed, एक घंटा बीत गया. Then another, फिर दूसरा घंटा बीता. The sun went down behind the trees. जो सूर्य था वह पेड़ों के पीछे अस्त हो गया. And at last the king stuck the spade into the ground. अंततः जो राजा था उसने फावड़े को जमीन पर टिकाया एंड सेड और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं विद्वान व्यक्ति में आपके पास आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे बताओ, ऐसा मुझे बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस चला जाऊँगा. हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, साधु ने कहा, यहाँ दौड़ते हुए कोई आ रहा है. और जो सेकंड है यहाँ से देखते हैं. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. The king turned round, राजा पीछे मुड़ा, and saw a bearded man running towards them. और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनके पास दौड़ते हुए आ रहा था. His hands were pressed against his stomach. Stomach means पेट. उसने अपने हाथों से अपना पेट दबाया हुआ था. From which blood was flowing, और उसके पेट से खून बह रहा था. When he reached the king, जब वह राजा के पास पहुंचा, he fainted, वह मूर्छित हो गया, वह बेहोश हो गया, and fell to the ground, और जमीन पर गिर गया. The king and the hermit, राजा और साधु, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा और साधु ने उस व्यक्ति के कपड़ों को हटाया and found a large wound in his stomach, और उन्होंने देखा कि उसके पेट पर एक बड़ा सा घाव हो गया था. The king washed and covered it with his हैंकरचिप, राजा ने उसे धोया, उसके घाव को धोया और उसको अपनी रुमाल से ढक दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून का बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब तक कि खून नहीं रुक जाता तब तक जो राजा था उसने उसका जो घाव था उसको फिर सही किया, उसको ढका. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उस व्यक्ति को अच्छा लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ताज़ा पानी लेकर आए एंड गेव इट टू हिम, और उसे दिया, अर्थात उसे पानी दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, उस समय तक सूर्यास्त हो गया था. एंड द एयर वॉज कूल, और जो हवा थी वह बहुत ठंडी हो गई थी. अर्थात शाम के समय, आपने देखा होगा दिन में हमें गर्मी का एहसास होता है, लेकिन शाम के समय थोड़ी सी सर्दी का एहसास हमें होता है. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, राजा हर्मिट की मदद से उस घायल व्यक्ति को लेकर गया इनटू द हट, झोपड़ी में, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, ये क्वाइट नहीं है, क्वाइट है. उस व्यक्ति ने, अर्थात उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपनी आंखों को बंद किया और चुपचाप बिना शोर किए हुए शांति से लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, जो राजा था वह क्योंकि वह राजा जो था वो हर्मिट की झोपड़ी तक आया था चलकर. एंड द वर्क ही हैड डन, और जो काम उसने साधु के लिए किया था, अर्थात छोटे छोटे खड्डे खोदने का काम साधु के लिए किया था. ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह भी फर्श पर लेट गया. एंड, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके पेट से खून बह रहा है, और बगल में साधु हैं, और इधर से जो राजा साधारण व्यक्ति की वेशभूषा में है उसके घाव को ढके हुए हैं, उसको अपनी रुमाल से दबाए हुए हैं. Where he was, or who the strange bearded man lying on the bed was, और वह उस फर्श पर, राजा उस फर्श पर लेट गए जहाँ पे he was, और who the strange bearded man, strange means विचित्र, bearded man means दाढ़ी वाला व्यक्ति, lying on the bed was, जहाँ वह दाढ़ी वाला व्यक्ति, विचित्र व्यक्ति लेटा हुआ था बेड पर, उसके नीचे
की दरख्वास्त थी उस पर वो लिख दिया। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। एक दुबली एक आवाज़ में उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए या मुझे क्षमा कीजिए। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने राजा को जागते हुए देखा, अर्थात जैसे उसने राजा को जागते हुए देखा तो उसने उसे राजा को कहा, भाई कि मुझे माफ़ कीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो आप मुझसे किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हो, मैं किस बात के लिए आपको क्षमा करूँ। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wish to kill you and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। अब इस दाढ़ी वाले विचित्र व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका शत्रु हूँ। हु सोर रिवेंज ऑन यू, जिसने सोर मीन्स होता है शपथ लेना, सौगंध ली थी, रिवेंज मीन्स बदला लेने की, ऑन यू मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, और जिसने आपको आपके साथ बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, बिकॉज यू मीन्स तुमने, पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने मेरे भाई को मौत की सजा दी, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी संपत्ति को छीन लिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि तुम अकेले उस साधु को मिलने गए हो। बट आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं तुम्हें वापस आते हुए रास्ते में मारूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने छिपने के स्थान को छोड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपकी बॉडीगार्ड जो कि आपके घोड़े के साथ था उसके पास आया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल बना दिया, अर्थात मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उससे बचा। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, मैं मर चुका होता यदि तुमने मेरे जख्म को भरने में मदद नहीं की होती। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरे जीवन को बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, यदि मैं अब जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपका सबसे वफादार नौकर के रूप में मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने पुत्रों को भी यह आदेश दूंगा कि वह भी आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. The king was very happy. राजा बहुत खुश था to have made peace with his enemy, क्योंकि उसने अपने शत्रु के साथ शांति स्थापित कर दी थी, अर्थात उससे समझौता कर दिया था। सो इजीली, बड़ी आसानी से। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको अपने मित्र के रूप में जीत लिया था, उसका दिल एक मित्र के रूप में जीत लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, फॉरगिव का सेकंड फॉर्म है फॉरगिव, उसने न केवल उसे क्षमा किया, उसको माफ़ किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, यहाँ तक कहा कि वह अपने नौकरों को, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने डॉक्टर को, टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने न केवल उसे क्षमा किया, उसे माफ़ किया, अपितु यह भी कहा कि वह अपने नौकरों को और डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वायदा किया कि वह उस व्यक्ति को, अर्थात उस घायल व्यक्ति को, उसकी संपत्ति को बैक करेगा, वापस देगा। आगे है leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his question. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." Leaving the wounded man, उस घायल व्यक्ति को छोड़कर, the king went out of the hut, राजा उस झोपड़ी से बाहर गया, and looked around for the hut, और उसने साधु को देखा।
बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड सॉरी, जाने से पहले उसने इच्छा की, वंस मोर एक बार पुनः, टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने की उसने एक बार पुनः इच्छा व्यक्त की, अर्थात वह चाहता था कि उसके प्रश्नों के उत्तर उसे मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बैट्स, बैट्स में छोटे छोटे खड्डे, जो छोटे छोटे खड्डे हर्मिट ने बनाए थे वह उनमें बीज बोने के लिए अपने घुटने के बल झुका हुआ था। दैट हैड बिन डग द डे बिफोर, जो उसने पिछले दिन बनाए थे उसमें बीज बोने के लिए वह घुटने के बल झुका हुआ था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साधु के पास गया एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम समय के लिए, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, विद्वान व्यक्ति में आपके उत्तरों का, जो मेरे प्रश्न हैं मैं चाहता हूं कि आप उनका उत्तर दें, उसकी विनती मैं आपसे करता हूं, अर्थात मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. You have already been answered. आपके प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं, said the hermit. साधु ने कहा कि आपके जो प्रश्न थे उसके उत्तर पहले ही आपको मिल गए हैं। hermit still bending down to the ground. अभी भी साधु जमीन पर झुका हुआ था, and looking up at the king, और राजा को देख रहा था, as he stood before him, जैसे ही राजा उसके पास खड़ा हुआ, उसने राजा को कहा कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे इन प्रश्नों के उत्तर कैसे मिले हैं। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे तो इन प्रश्नों के उत्तर मिले ही नहीं है, आपका क्या प्रयोजन है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर आगे होता है, डू यू नॉट सी, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these bats for me, you would have gone away, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने उत्तर दिया और कहा, क्या तुम्हें दिखता नहीं है, अर्थात क्या तुम्हें यह चीज़ें दिखती नहीं है। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, यदि तुम मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाते, यस्टरडे मीन्स कल, यदि तुम कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाते, एंड हैड नॉट डग दीज बैट्स फॉर मी, और आप मेरे लिए इन छोटे छोटे खड्डों को नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से जा चुके होते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब यह व्यक्ति जो कि अभी घायल हुआ है, यह व्यक्ति आप पर अटैक करता, आप पर आक्रमण करता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और उस समय तुम कामना करते, इच्छा करते कि काश मैं साधु के पास, अर्थात मेरे पास रुक जाता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह तब था जब आप मेरे लिए छोटे छोटे खड्डों को खोदने का काम कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस समय मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए जो तुमने कुछ किया, अर्थात मेरे लिए जो तुमने खड्डे खोदने का काम किया, वह उस समय का सबसे अच्छा कार्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, और उसके बाद जब यह व्यक्ति दौड़ते हुए हमारे पास आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, और उस समय का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय क्या था, जब यह व्यक्ति हमारे पास दौड़कर आया और तुमने उसको, उसके घाव को सही करने में उसकी मदद की, उसकी देखभाल की, केयरिंग की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, यदि तुम उसके घावों को नहीं भरते, अर्थात उसके घावों पर मरहम पट्टी नहीं लगाते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो क्या होता, वह तुमसे शांति स्थापित करने से पहले ही मर चुका होता। डाइड मीन्स मरना, डाइड इज द सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ डाई, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वह उस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया वह उस समय का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य था। Remember then, there is only one time that is important, and that is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. याद कीजिए, there is only one time, सिर्फ एक समय है, that is important, वह महत्वपूर्ण होता है, and that time is now, वह समय
हमेशा अब होता है, अर्थात हमारा जो प्रेजेंट होता है, हमारा जो वर्तमान समय होता है, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय हमारे लिए होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि यह वह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि वही उसी समय हम किसी भी काम करने की ताकत रखते हों, शक्ति रखते हैं, तो वह समय आपके लिए सबसे उपयुक्त और सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। एंड द लास्ट पैरा इज फ्रॉम हियर, the most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose only, purpose alone. The most necessary person, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके साथ आप किसी विशेष समय में होते हैं, अर्थात जो भी आपके सामने व्यक्ति होता है वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्या हम इसके अलावा उसको अभी कभी फिर मिलेंगे, अर्थात जिस समय जो व्यक्ति आपके सामने होता है वह व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति आपको फिर आने वाले समय में मिले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण काम वह है जब आप उसके भलाई के लिए कुछ करते हो, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस संसार में भेजा गया है, फॉर दैट पर्पस अलोन, केवल इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें संसार में भेजा गया है कि यदि आपके सामने कोई व्यक्ति आए तो वह व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसकी भलाई के लिए आप जो कुछ करते हो वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। और जब वह व्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत होता है, जिस समय प्रस्तुत होता है, वह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस तरह से राजा को अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए, और इस तरह से ये जो स्टोरी है समाप्त हो जाती है। all of you have understood it very well. If you have any questions related to this story, you can ask me any type of questions in the comment box. Thanks for watching this video. We'll meet soon in another video. Thanks.